Everyone, we are starting session with Anush Singhal ji. Friends, yesterday he got 102 viral fever, so he couldn't come at last moment. Even you had seen that some many flights from the Delhi that has also been cancelled. That were the two reasons he couldn't join at last moment. But at a viral fever of 102, look at the Jeel. He agreed that he will join virtually. So big round of applause for the learned speaker who wanted to join physically but couldn't join due to the unavoidable reasons. So with these, may I request the President Neeraj ji to kindly join us on the dais along with the Rahul. Rahul, please. Modi ji, our Modi ji, our executive committee members. Friends, his full profile, the profile of Anush Singhal ji is there on the screen. What I like most, he has over 2 decades of experience. And what I liked the most is he has over 2 lakhs social media followers. Big round of applause for Anush Singhal ji. Over 2 years of decades of experience in the stock market, friends. And Singhal ji, what I would like you to speak more. Our portfolio has become like a watermelon. Nifty and Sensex that are green. But our portfolio, maybe due to the reasons, we are more on the small and medium size that companies, that is probably the reason our portfolio is like red. So how long? From more than 1 year, we are waiting that it is still in red and again further going red. It is becoming more red. So how long we have to wait? That if you can address that, that probably the basic things everybody would ask. Before that, before you speak, I would like the President to kindly come and speak. Thank you, Nitesh ji. First of all, a hearty welcome virtually to our honorable guest speaker, Shri Anush Singhal ji, sir. From the bottom of my heart, I thank you for taking time out from your very, very busy schedule, and despite having health issues, despite all the issues which we are having for the last few days regarding the flights, you have consented to be continuing to be part of this session. Just for your information, sir, VIP Road Chartered Accountant Association is one of the largest CA-only association in this part of the country, the Eastern India. We are having around 1,100 chartered accountants as our members, and we have varieties of events throughout the year. And this particular event, Innovation to Investment, is in its 5th season, wherein we talk about the capital markets, we talk about SME IPOs, and the artificial intelligence today. And we have learned speakers from across the country. Even we have Shri CA Nitin Murarka ji also amongst us physically. And we are all eagerly waiting to hear from you. I request you to address all of us, sir. Okay. Thank you so much. First of all, my apologies that I'm joining here. One second. Yeah, I'm joining here virtually, and I hope all of you can hear me. Yes, sir. Yes, sir. You can hear me, right? Yes. Okay. So first of all, my sincere apologies. I wanted to, sorry, I wanted to join, but I had bad viral, because of which for last couple of days I was not able to do all my shows also. So I requested if I can join virtually, and Nitesh ji, thank you for agreeing. देखिए पोर्टफोलियो का तो ऐसा है कि सबका इस समय यही हाल है कि मैं आपको कुछ एक्चुअली आपने पोर्टफोलियो की बात की है ना, तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ एक्चुअली, उससे सबको पता चल जाएगा कि इस समय पोर्टफोलियो कैसा है सबका। देखिए जरा एक बार ये पोर्टफोलियो, हाँ रुकिए 1 मिनट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टफोलियो की हालत इस समय जो आपने बात की है ना। एक स्लाइड दिखाता हूँ, उसको हम बाद में थोड़ा सा और अच्छे से भी देखेंगे।
ये देखिए ये है पोर्टफोलियो इस समय, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड पे निफ्टी है और राइट हैंड साइड पे पोर्टफोलियो है। इस समय पोर्टफोलियो का ये हाल है। तो इसका इसका रीजन क्या है? इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन यही है जो मैं अभी इससे पहले वाली कॉन्वर्सेशन को भी सुन रहा था कि हम लोग सब के सब 2023 की वो जो बुल मार्केट थी, मैड मार्केट थी, जिसमें इतने लोगों ने इतना पैसा बनाया था, उससे इतना ज़्यादा सब प्रभावित हो गए थे और सबको बस ये लग रहा था कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, एसएमई, कचरा कैप, पैसा यहीं पे बन रहा है। टीवी पे नीलेश भाई आते थे और बहुत लोग आते थे, सब वार्न करते थे कि मिड कैप में बबल है, स्मॉल कैप में बबल है, एसएमई में बबल है। मतलब मैं, आप लोगों ने कहा कि मेरे को 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सर बताऊँ तो 20 साल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतना प्रीमियम था मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और एसएमई स्टॉक्स का ओवर लार्ज कैप सर। तो कहीं ना कहीं एक स्टेज आ गई थी जहां पर मुझे लग रहा था कि ये लोगों को लग रहा था कि बस ये पैसा यहाँ पर आता रहेगा और बस सिर्फ पैसे के दम पे स्टॉक्स चलते रहेंगे। हैंड ऑन हार्ट आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि वो किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे। खासतौर से एसएमई स्पेस में एक कंपनी आई थी, उसकी यामाहा की डीलरशिप थी और वो 2 डीलरशिप थी, उसने कुछ 8 करोड़ का आईपीओ निकाला था। आपको सबको पता है उसको कितना सब्सक्रिप्शन मिल गया था। तो इशू ये हो गया था कि इशू ये हो रहा था कि वैल्यूएशन उस लेवल पर आ गए थे कि जहां पर सबको बस यही लग रहा था कि हमने बस हमारे अंदर ही जीनियस छुपा है, जो भी स्टॉक हम टच कर रहे हैं बस वही भाग रहा है। तो मार्केट का क्या है कि कोविड के बाद स्पेशली जो इतने जो नए इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने कभी करेक्शन तो देखी नहीं थी। तो पहली ऐसी करेक्शन आई और मेरा पर्सनली तो ये मानना है कि ये मार्केट जो है काफ़ी शानदार है एक्चुअली, क्योंकि ये आपको फोर्स कर रही है पिछले 6 महीने में कि आप 2000 जो 21 से 23 24 के शुरू का फेज था ना, उसमें दिक्कत ये हो गई थी कि उसमें आप कहीं भी डार्ट फेंकें, आप सपोज करिए आप डार्ट फेंक रहे हैं, डार्ट का गेम खेल रहे हैं और कहीं भी फेंके वहाँ बुलजाई लिखा है, तो बुलजाई पे जाके लगेगा। उसमें आपकी कोई बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं, लेकिन अंदर से आपको फीलिंग आएगी कि मैंने बुलजाई हिट किया है। अभी जो मार्केट है ना, अभी मार्केट वो वाली मार्केट है जिसमें आप 50 मीटर दूर खड़े हैं, सामने वो डार्ट बोर्ड है, उसमें बस एक ही बुलजाई है और बाकी सब इधर उधर के वो फ्रेम्स लगे हुए हैं। अब इसमें आपको बुलजाई मार के दिखाना है और मार्केट देखिए लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ऑल टाइम हाई नहीं लगा रहा है मार्केट। और मेरा वीडियो आ रहा है सबके सबके पास? सर पीपीटी वाला वीडियो चला दीजिए। अच्छा ठीक है, फिर चला देता हूँ मैं। तो देखिए ये जो मैं कह रहा था बात कि द न्यू इंडिया फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग, अ जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड रिन्यूअल। अब आप लोगों ने देखा ये सब ने कि किस तरीके के जीडीपी के नंबर्स आए हैं। कल आरबीआई गवर्नर की पॉलिसी भी थी, इतने शानदार जीडीपी नंबर के बाद भी गवर्नर साहब ने रेट कट किया और क्लियरली इस समय उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, गोल्डी लॉक्स। और आई थिंक इंडिया इज गोइंग थ्रू दैट गोल्डी लॉक्स। अब इसमें इशू ये है कि जरूरी नहीं है कि जब गोल्डी लॉक्स चल रहा हो तो सब कुछ अच्छा होगा। बीच बीच में इसमें दिखते हैं, हमारी मार्केट में भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हमारी मार्केट में दिखते हैं। हमारी मार्केट में काफ़ी दिक्कतें हैं। ग्रोथ जो है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसा आपने बोला पोर्टफोलियो जो है वो चल नहीं रहा है, सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जब जब इसका उल्टा हो रहा था तो हम लोग खुश थे कि चलो ठीक है निफ्टी कहीं भी जाए, मेरा तो पोर्टफोलियो चल रहा है। अब थोड़ा सा मार्केट ने उल्टा कर दिया, अब थोड़ा लार्ज कैप ज़्यादा चल रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे थोड़े से पोर्टफोलियो में लोगों को दिक्कत आ रही है। अब देखिए भारत के बारे में मैं एक बात कहूँ तो एक पावर हाउस की तरह से हम उभर रहे हैं क्लियरली। अभी आप देखिए पुतिन जी यहाँ पर आए हुए हैं और ही इज़ ऑफकोर्स वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स, ही इज़ हियर। हमारी जो कहानी है इंडिया की, काफ़ी रिजिलियंस की कहानी है। आई थिंक कितने समय से लोगों ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की है लेकिन वो सक्सीड हुए नहीं हैं। और रिफॉर्म्स, रीबर्थ, ये हमारी कहानी है बेसिकली। एक समय था हम फ्रेजाइल 5 में थे। मैंने अभी अभी एक एनालिसिस किया था कि क्यों हमको रुपये की गिरावट से इतने ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक समय पर हम फ्रेजाइल 5 में थे और आज देखिए हम वर्ल्ड की 5th स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं और जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% से ऊपर रही है, जबकि जिसमें कि स्लो डाउन शामिल है उसके बावजूद। और अब तो हम 8.2% उस रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। तो क्लियरली रिफॉर्म्स, डिजिटल रेवोल्यूशन,
डेमोग्राफी, इन सब का कॉम्बिनेशन हमें हेल्प कर रहा है। मुझे 1 मिनट दीजिए आप, जरा मेरी फ़ोन की बैटरी जरा वीक हुई है, मैं बस 1 मिनट पावर बैंक लेके आता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो एक समय था हम फ्रेजाइल 5 में थे, आज की डेट में हम वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में से हैं। एवरेज जीडीपी ग्रोथ हमारा 6.5% का रहा है एक पूरे 10 साल के उसमें। इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है और डेमोग्राफी, इसका एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो मेरा ये मानना है कि जो पिछले 10 साल का एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, और देखिए मैं इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली 10 साल क्या, आप चाहे पिछले 20 साल ले लीजिए, मैं उससे पिछले 10 साल को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा पिलर रहा है वो रहा है डिसाइसिव पॉलिसी एक्शन। क्योंकि एक समय था जब हमारी सरकारें ना कोई भी डिसीजन लेने से डरती थी। आज की डेट में आप देखिए, चाहे ये करंट सरकार हो या इवन उससे पहले जब सरकार आई थी, जब वो डिसीजंस लिए गए थे टू फ्री अप पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस, एलपीजी प्राइस। इसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन किया, उसके बाद जीएसटी जिस तरीके से लागू किया, फिर आईबीसी लागू किया, उसके बाद जिस तरीके से विदाउट फियरिंग फॉर बैकलैश और विदाउट फियरिंग फॉर कोलैटरल डैमेज जिस तरीके से स्टेप्स लिए गए, आई थिंक दे आर गोइंग टू कीप अस इन गुड स्टेट। देखिए, हम अमेरिका जैसी कंट्रीज से 30-40 साल पीछे चलते हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेकिन हम जा रहे हैं उस तरफ। एक ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन पर क्लियरली फोकस हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो है स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफी। इस समय दुनिया की लार्जेस्ट और यंगेस्ट वर्कफोर्स हमारे पास है। आप देखिए, इस समय हम चल रहे हैं उस गोल्डन पीरियड में जिसमें चाइना था करीब 30 साल पहले, जिसमें जापान था करीब 50 या 60 साल पहले, और अमेरिका था करीब 70 या 80 साल पहले। वो गोल्डन पीरियड क्या है? जो हमारी पॉपुलेशन है उसका लार्जेस्ट प्रपोर्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है, और वो 20 से 30 साल की एज में है। 20 से 30 साल की एज में जो पॉपुलेशन है वो हमारी इस समय सबसे ज्यादा है। और इसका मतलब ये है कि ये जो पॉपुलेशन है ये आगे जाकर इस समय एक डेवलप्ड कंट्री, जब तक ये हमारी एज में आएंगे, मेरी एज में आएंगे, तब तक ये शायद एक डेवलप्ड कंट्री का हिस्सा होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए फैक्टर रहेगा। सॉरी, मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगले आने वाले 20 साल में हमारे देश से भी गूगल, फेसबुक, एनवीडिया जैसी कंपनियों का जन्म होगा। अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब होगा यहाँ से, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग इनटू दैट स्टेज वेयर आवर स्कूल्स आर चेंजिंग, आवर एजुकेशन सिस्टम इज चेंजिंग, वेयर इंस्टेड ऑफ, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हमको सब एक सपना दिखाया जाता था कि बेटे बड़े होके आईएएस ऑफिसर बनना है, या ये बनना है, वो करना है थोड़ा सा, या एक अच्छा सा ऑफिसर बनना है, एमबीए करके जॉब लेनी है। कभी हमारे मन में ये फीलिंग नहीं लाई गई थी कि एंटरप्रेन्योर बनना है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोनों बच्चों को जो ट्रेनिंग देता हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को ये ट्रेनिंग देता हूँ कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ अपना करना है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप है तुम्हारे पास। तो इसके लिए अब थोड़ा सा जो डेमोग्राफी है ना वो उस तरीके से शिफ्ट हो रही है। आज की डेट में अगर आप मेरे बच्चों से पूछोगे, जैसे मुझसे पूछते थे जब मैं बच्चा था, मैं बड़ा हो रहा था कि बेटा बड़े हो क्या बनोगे, मैं बोलता था इंजीनियर बनूंगा, और इंजीनियर बन के एक नौकरी करूंगा, 10,000 महीने की जॉब होगी, जिससे अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखूंगा, अपनी फैमिली चलाऊंगा। आज की डेट में मेरी बेटी से अगर आप पूछोगे कि जैसे 2-3 दिन पहले उससे पूछा किसी ने कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उसने बोला कि मैं अपनी खुद की बेकरी खोलना चाहती हूँ। ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है जो आज की जनरेशन में आ रहा है। लोग, अब आप देखिए, उसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं, वर्किंग क्लास। अब आज की डेट में हम लोग, जब मैं बच्चा था फॉर एग्जांपल, सो घर में अगर कोई हाउस हेल्प आती थी, वो अपने साथ में अपनी बेटी को भी लेके आती थी, बिकॉज शी वॉज ट्रेनिंग हर टू टेक ओवर दैट जॉब व्हेन शी गेट्स ओल्ड। Now, if you see, most of these house helps and everyone, drivers, everyone is sending their kids to schools, giving them education, believing that they will do something better than them. I think that is going to keep us in good stead, and that is what I think is going to define the India of next 20 to 30 years, which is that we will have a lot of education, we'll have a lot of aspirational India, and that is going to obviously translate into equity markets. राकेश झुंझुनवाला ने मुझे एक बार बोला था कि निफ्टी 1.5 लाख का होगा। उन्होंने कहा था कि वो तो जिंदा नहीं रहेंगे उसके लिए, लेकिन तुम लोग देखोगे अपनी लाइफ टाइम में। आई होप कि उनकी बात सही हो और ऐसा हो।
रिफॉर्म्स जिन्होंने इंडिया को रिडिफाइन किया है पिछले कुछ सालों में, उसमें जीएसटी है, इंसॉल्वेंसी कोड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, टैक्स बेस एक्सपेंशन, डिजिटल गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। आई थिंक मैं कलकत्ता आया था कुछ समय पहले, मैं हैरान था देखकर कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पर अपग्रेड हुआ है। वो मा फ्लाई ओवर फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट फ्लाई ओवर्स दैट आई हैव सीन। इफ़ यू कम टू मुंबई, मुंबई में कोस्टल रोड जो बनी है, अगर आप लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट pieces of infrastructure, not just in the country, but in the world. And I think slowly and surely we are getting there. Obviously, what happens is when the population growth is so big, every time you feel कि नहीं अभी भी हम थोड़ा सा पीछे ही हैं, वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं उस तरफ पर, ठीक है। आई थिंक डिजिटल गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के मामले में वी आर सेकेंड टू नन, परहैप्स ओनली चाइना, बट चाइना इज अहेड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो दैट इज अ बार विच इज एक्सट्रीमली हाई। सॉरी। देखिए, मार्केट की जहां तक बात है, निफ्टी की अगर आप जर्नी, मैं तो एक डेकेड की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2 डेकेड से आप देख लीजिए। मैंने अपना करियर शुरुआत की थी 2003 में। तब निफ्टी होता था करीब आई थिंक 700 या 800 पे होता था निफ्टी। आज की डेट में हम 26,000 पर हैं। रिटेल इन्वेस्टर का आपने पार्टिसिपेशन देखा ही है। एसआईपी की बुक 30,000 करोड़ क्रॉस कर रही है ऑलमोस्ट ऑन अ मंथली बेसिस, एंड इंडिया इज अमंग ग्लोबल टॉप 5 इन मार्केट कैप। अब इसमें इशू क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि 1 और 2 हमसे इतना आगे हैं कि टॉप 5 तो ठीक है, लेकिन हमारा अगर एस्पिरेशन टॉप 1 या 2 में आने का है, तो वो हमारी लाइफ टाइम में तो नहीं होगा, लेकिन होपफुली हमारी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ टाइम में हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी विल बी होपिंग फॉर। सबसे जो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग इनोवेशन या स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहा है हमारे लिए, वो है डिजिटल इकोनॉमी। आई थिंक आज की डेट में क्या टेक्टोनिक शिफ्ट आया। एक समय था जब यूपीआई वगैरह शुरू हुए थे, तो कोई भी लेने से मना करता था, सबको कैश पेमेंट चाहिए होता था। आज की डेट में सिचुएशन ये आ गई है कि आप किसी को कैश देना भी चाहो तो वो कहता है कि नहीं सर, कैश मत दीजिए प्लीज, कौन संभालेगा, आप यूपीआई कर दीजिए। ये स्कैन, बस ये जो स्कैनर है ना, ये आई थिंक ये हमारी एक इमेज बन गई है। ये स्कैन एंड पे, हर जगह आप देखिए बस स्कैन एंड पे। अब तो आजकल ऐसा वो हो गया कि लोगों ने टैटू बनवा लिए हैं अपने हाथ पे स्कैन एंड पे के, कि ये लोग इसी पे आप स्कैन कर दो बस। मैं गया था गोवा में गया था एक जगह, वहाँ पे वो टैटू आर्टिस्ट था, उसने अपने आर्म पे ही ना अपने स्कैनर का टैटू बना दिया था। उसने कहा ये लो, उसने कहा कि तो कल को कोई झंझट ही ना हो, सीधा इसी पे आप मुझे मेरा पैसा वो कर दीजिए। तो एशिया में इंडिया इज लीडिंग फिनटेक्स, इवन इंक्लूडिंग चाइना। जनधन, आधार मोबाइल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लीकेज पूरी खत्म हो गई है। एक समय था कि जिसमें जैसे वो मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि हम अगर 100 रुपए भेजते हैं तो जिसको ट्रांसफर जाना तो उसको 5 रुपए मिलते हैं, बाकी 95 बीच में गायब हो जाते हैं। अब वो खत्म हो गया। अब पूरा का पूरा 100 रुपए जो है वो जिसको आपको ट्रांसफर करना है एग्जैक्टली उसके पास जा रहा है। तो दैट्स अ बिग बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग। I think manufacturing and make in India has been a huge turning point for India. बहुत लोगों ने हंसी उड़ाई थी जब प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था। लोगों ने कहा था कि यहाँ पर आप कैसे मेक इन इंडिया कर पाएंगे, आप कैसे compete करेंगे। अब आप देखिए, इस हम एक स्टेज पे आने वाले हैं जहाँ वर्ल्ड के सबसे ज्यादा आईफोन इंडिया में बनेंगे। एक समय था में इंडिया में सबसे ज्यादा आईफोन बनेंगे, हम उस सिचुएशन पर आने वाले हैं। और एक तरीके से हम एक ग्लोबल सप्लाई चेन को हमने डिरिस्क किया है। चाइना प्लस वन अब एक फैक्टर ही नहीं रहा। लोग चाइना प्लस वन के बजाय चाइना प्लस इंडिया बोलने लगे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि चाइना प्लस वन जो है वो अब चाइना प्लस इंडिया हो गया, क्योंकि वो प्लस वन जो है वो इंडिया ही है मेनली। एफडीआई थोड़ी गिरी है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वगैरह में काफी शानदार रही है एफडीआई। इसके अलावा एक और चीज जो हम कर रहे हैं वो है रिन्यूएबल्स। आई थिंक मैं रिसेंटली यहाँ गया था, कई बार कुवैत और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में गया था। वैसे बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ मैं कहना जो भूल गया था कि सी इंस्टीट्यूट के जितने भी चैप्टर्स और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इतना लगाव है मुझे उनसे, सब मुझे इतना इन्विटेशन मिलता है। वो कई लोगों ने तो मुझे एक जगह गया था, वहाँ मुझे सीए अनुज सिंघल के नाम से उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने कहा था कि अब तो आप ऑनरेबल सीए हो ही गए हैं, जबकि मैं सीए नहीं हूँ। फिर भी आप लोग मुझे इतने प्यार से बुलाते हैं तो मुझे उसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी, आई थिंक 2030 तक हमारा टारगेट है कि 40% एनर्जी जो है वो हमारी रिन्यूएबल से आए, उसमें हम लीडरशिप अटेन करें।
और 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030, ईवी मिशन, सोलर एक्सपेंशन। आई थिंक इसमें हम सब लीडर्स हैं। आपने देखा ही होगा पिछले 5-6 सालों में किस तरीके से स्टॉक्स आए हैं, चाहे वो वारी एनर्जीज हो, चाहे वो प्रीमियर एनर्जीज हो, विक्रम सोलर, ऐसे कई स्टॉक्स हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक और एंडोर्सिंग एनी स्टॉक। इनमें से कई स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे, कई स्टॉक शायद बिल्कुल अच्छा ना करें, लेकिन हम बढ़ रहे हैं उस तरफ। भारत के दो सबसे बड़े जो वेल्दिएस्ट इंडिविजुअल्स हैं, दे आर बोथ कम्पीटिंग इन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप। तो इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंडिया। जरूरत भी हमें, जिस तरीके का पोल्यूशन है हमारे देश में, और खासतौर से इस पर्टिकुलर टाइम में, इवन मुंबई में भी आजकल जैसे काफी स्मॉग है, तो काफी जरूरत है हमें थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए। G20 की लीडरशिप है हमारे पास आज। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जाता है हमें। रुपी ट्रेड एक्सपेंड हो रही है, हालांकि रुपी अब 90 पर है, लेकिन ठीक है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। वर्ल्ड्स यंगेस्ट वर्कफोर्स, आई थिंक ये पॉइंट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। द यूनिकॉर्न फैक्ट्री, इनोवेशन एट स्केल। जैसा मैंने कहा कि होपफुली अगले कुछ सालों में जो सबसे बड़े यूनिकॉर्न्स होंगे वो भारत से डेवलप होंगे। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली। यूएस और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है नंबर 3 पर, बिकॉज हर फ्यू वीक्स में वी आर जनरेटिंग अ न्यू यूनिकॉर्न। वो आपको स्टॉक मार्केट में भी दिख ही रहा है, हर महीने कोई ना कोई नया आईपीओ होता है जिससे लोग बिलियनर बन जाते हैं। Tier 2 and Tier 3 cities, I think that is the where the magic is, because वहां मैं जाता हूँ ना, वहां मैं देख रहा हूँ कि लोग काफी खुश हैं और काफी इनोवेशन कर रहे हैं वहां पर। विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन द राइज। आई थिंक किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वहां इक्वल पार्टिसिपेशन हो मेन एंड विमेन का। $100 बिलियन प्लस का रेमिटेंस फ्रॉम एनआरआईज, आई थिंक ये हमारे लिए एक मैसिव मैसिव पॉजिटिव है। लेकिन हमारे पास काफी चैलेंजेस भी हैं। अगर आप देखें, जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। एआई की वजह से काफ़ी जॉब्स जा रही हैं। काफ़ी लोग, जैसे कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि अमेरिका इंस्टाग्राम बना रहा है, चाइना टिकटॉक बना रहा है, हम उस पर रील बना रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको उस तरफ काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स के लिए थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन रोकने की ज़रूरत है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द सीईओज ऑफ मोस्ट ऑफ दिस बिग कंपनीज आर इंडियंस, लेकिन वो सब बाहर जाके बैठे हैं। चाहे गूगल के सीईओ हों, चाहे बीच में एक बार ट्विटर के भी सीईओ इंडियंस थे, ऐसे कई सीईओज आप देखें सब बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन फिर भी, जैसे मैंने कहा, रिजिलियंस थ्रू रिफॉर्म, और जो इंडिया का माइंडसेट है, अगर आप देखें, हम कॉन्फिडेंट हैं, एम्बिशियस हैं, ग्लोबल हैं। एक एग्जांपल है, आप हमारी क्रिकेट टीम को ही देख लीजिए। पहले कोई भी आके हमको स्लेज करके खिलाता था, आज हम इक्वली स्लेज बैक करते हैं। तो अमृत काल 2047 तक का हमने व्यू लिया है कि इंडिया एट 100 वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। और कैन डू, आई थिंक पहले हम कोई भी होता था, हमें लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे। आज की जनरेशन से आप पूछो, उनको लगता है कि नहीं, हम कर लेंगे। तो आई थिंक ये क्लियरली एक मार्केट के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। विजन 2047, आई होप कि बाय 2047 वी आर एक्चुअली फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट ट्रांसलेटिंग इनटू अ सुपर पावर। तो जिसे कहते हैं भारत ऑन द मूव, ये क्लियरली हमारे लिए एक सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वाकई में ये मुझे लग रहा है कि ये हो रहा है। और एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आपकी थोड़ी सी परमिशन हो तो, आप लोगों की। एक थोड़ा सा श्योर सर। इसमें हंसी हंसी मजाक का टॉपिक और जोड़ लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा सीरियस बातें ज्यादा हो गया हूं। ये सब दिख रहा है ना सबको? हेलो। यस Yes, सर, यस sir. सर। तो देखिए, आज की डेट में ये है स्टॉक मार्केट। इसमें कंपनीज जैसे ही मेंशन करती हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वो स्लाइड्स नहीं दिख रही हैं यहाँ पे। नहीं दिख रहे, रुकिए एक मिनट, मैं अभी स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा एक मिनट वापस शेयर करता हूँ। एक मिनट, आप दिख रही है ना? यस सर। तो ये देखिए, ये आज की डेट में स्टॉक मार्केट का हाल है। कंपनी कोई भी मेंशन कर दे एआई, उसके स्टॉक का ये हाल हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी दुनिया को उठा सकता है उसका स्टॉक। ये मैंने दिखाई दिया आपको। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो कैटेगरी है ये निफ्टी है, और राइट हैंड साइड वाली जो कैटेगरी है ये स्टॉक्स एंड पोर्टफोलियो है। मैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो
मैं तो ज़्यादातर अपने आप को लार्ज कैप में रखता हूँ, तो इसके लिए मैं तो इस समय थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड वाला फील कर रहा हूँ। पहले मैं राइट हैंड साइड तरफ फील करता था जब मिड कैप और स्मॉल कैप की राजी हो रही थी तब। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं ये 5-6 साल पहले की बात है। मेरे घर पे एक अंकल आए हुए थे, तब माय फादर वाज अलाइव एट दैट टाइम। तो वो उन्होंने एक बार, मेरे अंकल मुझसे पूछे थे, मुझसे इन्वेस्टमेंट पे सलाह दे रहे थे कि क्या क्या करना है। तो मैं उनको बता रहा था कि 20% इसमें डाल दीजिए, 15% उसमें डाल दीजिए, 10% इसमें डाल दीजिए। तो फिर मेरे पापा आए, मेरे पापा कहते रहे, बंसल साहब आप कब आए? बोले नहीं भाई साहब, आप सो रहे थे। तो मैं अनुज से थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा था। मेरे पापा ने कहा कि इसको कुछ नहीं पता, आप एफडी में डाल दीजिए, इन लोगों को कुछ नहीं पता। तो आप चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं लाइफ में, आपके पेरेंट्स को तो ये लगेगा कि बस स्टॉक मार्केट ये सब जुआ है, पैसा अपना पूरा का पूरा एफडी में डालो। हम सबकी यही ख्वाहिश है कि बस एक पोर्टफोलियो बन जाए 20-25 करोड़ का। लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए इतनी सब चीज़ें हैं, सब कहते हैं बाय द डिप, बाय द डिप। पैसा ही नहीं है डिप बाय करने का। एक आपने रिसेंटली ट्विटर पे एक इंसिडेंट देखा था, काफी वायरल हुआ था। एक कंपनी की एक कॉल चल रही थी जिसमें वो इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब दे रहे थे। एक इन्वेस्टर ने कॉल किया और उसने गालियां देनी शुरू कर दी सीईओ को और सीएफओ को कि आप तो पैसा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साइफन ऑफ कर रहे हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। वो बेचारे बड़े प्यार से सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने पूछा आखिरकार आपके पास कितने शेयर हैं? तो उन्होंने बोला मेरे पास एक शेयर है। तो ये हमारे देश की ब्यूटी है कि अगर आपके पास एक शेयर भी है तो भी आप कंपनी के शेयर होल्डर की तरह, कंपनी के ओनर की तरह उसके सीईओ से बात कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। ये देखिए, जब पिछली मार्केट में ना पिछले एक साल काफ़ी दिक्कत थी, मैं खासतौर से बोलता था बाय द डिप, बाय द डिप। तो जो लोग मुझे ट्रोल करते थे, अभी भी करते हैं, वो इसी तरीके से करते थे। कहते थे कि तुम्हारा तुम्हारा खुद का पैसा होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम बाय द डिप, बाय द डिप करते रहते हो। और ये आई थिंक आज की मार्केट में सबसे ज़्यादा वैलिड है। सेंटा से सब कुछ मांगते हैं, वैसे ही क्रिसमस आ रहा है। एक बच्चे ने बोला मुझे आईपीओ की अलॉटमेंट चाहिए, तो सेंटा ने कहा कि वो तो मेरे मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर आप जितनी बार क्रंच करेंगे लॉस मेकिंग ट्रेड के लिए, तो आपकी बॉडी कैसी बन जाएगी। और ये आजकल की, ये लास्ट है आजकल की स्टॉक मार्केट फोरम। ये आजकल ऐसे स्टॉक मार्केट में काम चल रहा है। और ये है, क्या है ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब पे जो स्टॉक मार्केट में आजकल टिप्स शेयर हो रही हैं, ये बेसिकली वो है। तो एक सेकेंड। So that is all from my side in terms of presentation, and I would be happy to take any questions that you have now. Thank you, sir, for the wonderful presentation and taking us through the entire gamut of where we stand now, where we are heading to, and what are the fallacies. And we have full house today, and I'm sure all of them would be having quite a few questions addressed to you. And सर, बाकियों से शुरू करने के पहले एक क्वेश्चन मेरा है कि अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, खास करके जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे भी देखा जा रहा है कि यंग इन्वेस्टर्स काफ़ी पैसा डाल रहे हैं मार्केट्स में, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं अभी मुझे एक फ़ोन आया, तो मेरी वो सोसाइटी के जो चेयरमैन थे उनका फ़ोन था। उन्होंने मुझे बोला कि अनुज जी, एक ना हमारे जो सिक्योरिटी हेड हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनके पास कुछ कॉर्पस है, तो वो चाहते हैं कि उसको इन्वेस्ट करें, तो उनको आपकी एडवाइस चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ एडवाइस देने के लिए। मैं मिला उनसे, तो मैंने कहा कि हाँ जी बताइए, आपने कितना पैसा जोड़ लिया? उन्होंने बोला मेरे पास 25-26 लाख रुपए है। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले, मैंने कहा कि अच्छा, आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बोले, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों अभी स्कूल में हैं, मैं चाहता हूँ कि जब वो कॉलेज की टाइम पे आए तो उतना पैसा जुड़ जाए मेरे पास, तो मैं उतना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ऐसी मेच्योर थिंकिंग होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो फिर तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी है? तो उन्होंने बोला ज़्यादा नहीं, 15%। तो मैंने कहा देखिए, 15% थोड़ा आप अग्रेसिव हो रहे हैं। 12-13% नॉर्मल बन जाता है मार्केट में पैसा। तो 12-13% के साथ सोचते थे, लेकिन चलिए आप 15% कह रहे हैं, मैं थोड़ा सोचता हूँ 15% आपका कैसे बनेगा। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा मिड कैप में लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मॉल कैप में भी लगाना पड़ेगा, तभी 15% साल का रिटर्न आएगा।
लेकिन 15% ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो आप। उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, एक मिनट आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। मैं क्या हुआ? बोले सर 15% साल का नहीं, 15% महीने का। तो मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, फिर तो ना जब आपको मिल जाए ना तो आप मुझे बता देना, तो मैं उसी हिसाब से इन्वेस्ट कर लूंगा। तो मेरा पहला जो लोगों को वो रहेगा ना, ये रहेगा कि अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को प्लीज थोड़ा कम रखें। ये स्टॉक मार्केट है, कसिनो नहीं है कि बस आप गए और आपने एक का 100 बना लिया। आई थिंक हमने एक फेज देखा था जिसमें लोगों ने 15% पर मंथ भी बनाया होगा, आई एम श्योर, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोविड 2021-22 के उस फेज में। लेकिन वो फेज मार्केट में बहुत कम आते हैं, और ज्यादातर मार्केट जो है ना वो एक इवन आउट कर देता है चीजों को। उसके बाद अगले 2 साल मार्केट ने उन लोगों का उतना ही पैसा वापस भी ले लिया होगा। तो स्टॉक मार्केट में अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा संभाल के चले। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन ही रखनी है आपने। और एक चीज मेरे ख्याल से जो मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, अपने आप को समझिए। यंगस्टर्स को मैं बोलता हूँ खास तौर से, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, जैसे हर कोई वीरेंद्र सहवाग नहीं है या हर कोई राहुल द्रविड़ नहीं है। आपको ये देखना है कि आप राहुल द्रविड़ हैं या वीरेंद्र सहवाग है। अगर आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो तो ट्रेडिंग करिए, कोई बुराई नहीं है। फिर मत देखिए कि सेबी का डेटा कहता है कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। जो 10% बना रहे हैं वो बहुत पैसा बना रहे हैं ना। लेकिन अगर आपको मार्केट बता दे कि नहीं, आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए बने हैं, तो फिर ट्रेडिंग को थैंक यू करिए। और फिर स्टॉक मार्केट में 12%, 15%, 16% उसके हिसाब से काम करिए। तो ये मेरी सबसे पहली एडवाइस होगी जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं। सर, एक अपने साल भर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो रिटर्न्स अपने मार्केट से मिल रहे हैं और उसको कंपेयर अपने करें गोल्ड एंड सिल्वर से, जो रिटर्न्स वहां पे आए हैं, सो अब पीपल आर कंफ्यूज्ड वेयर टू इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट में करते हैं और रिटर्न्स नहीं आते, गोल्ड सिल्वर ईटीएस भी करें और बाकी चीज में करें तो वो लगता है कि कुछ कम होंगे लेकिन वो हाथ नहीं आते। सो व्हाट इज योर टेक ऑन द बैलेंसिंग बिटवीन दीज टू एंड योर व्यूज ऑन दीज टू डिफरेंट मार्केट्स? देखिए पता है, इसमें ना एक फैलेसी है। इसमें फैलेसी क्या है कि जब हम गोल्ड के रिटर्न कंपेयर करते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ एक है ना, गोल्ड है। सिर्फ सिर्फ हम गोल्ड देख रहे हैं। हमने 20 साल पहले अगर गोल्ड लिया था तो गोल्ड तो एक ही है, 22 कैरेट का, 24 जो भी है वो गोल्ड है। हम उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में हम अगर निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 20 साल पहले आपने पीआई इंडस्ट्रीज में पैसा डाला होता, तो आज की डेट में गोल्ड उसके आसपास भी नहीं है। अगर आपने 20 साल पहले डीवीज लैब्स में पैसा डाला होता तो गोल्ड उसके आसपास भी नहीं है। अगर आपने 20 साल पहले पुंज लॉयड में पैसा डाल दिया होता तो तकिए में कैश रखा होता तो वो भी बेटर होता आज की डेट में। तो मतलब वो डिपेंड करता है ना कि आपने कौन से स्टॉक में डाला है। स्टॉक हम जब कंपेयर करते हैं ना, तो हम वो इंडेक्स के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं एक्चुअली उसको। इसके लिए तो मेरा ये मानना है पर्सनली, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड जरूर होना चाहिए। और ये जो लोग मेरे टीवी पे देखते आ रहे हैं, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये मैं 10-15 साल से कह रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा रियल एस्टेट भी होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए, माइक्रो कैप भी होना चाहिए। बस आपकी अपनी अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका। कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स तब लें जब आपके अंदर वो रिस्क लेने की और वो कॉन्फिडेंस है। जैसे राकेश झुंझुनवाला ने जब एक समय टाइटन में कॉन्सेंट्रेटेड बेट ली थी, या फिर विजय केडिया भाई जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं। लेकिन वो उनको उस चीज में पता होता है कि मैं अगर 20-25% गिर गया यहाँ से तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये मेरा मानना ये है कि पोर्टफोलियो जो है ना, वो मिक्स ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए। जैसे मेरा खुद का पोर्टफोलियो, मैं क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बहुत कम करता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड भी है, मेरे पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट भी है, मेरे पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड भी है, मेरे पोर्टफोलियो में एक अनलिस्टेड स्टॉक भी है, और मेरे पोर्टफोलियो में 2 लिस्टेड स्टॉक भी है। तो मैं तो ऐसे मैनेज करता हूँ। मतलब मैं तो वो बता सकता हूँ जो मैं करता हूँ। तो एंड दैट्स सर्व्ड मी रीजनेबली वेल एक्चुअली, इफ यू आस्क मी, इन लास्ट 20 ईयर्स। बस मेरे इससे एक गलती हुई थी, मैं टाइम पे अपने ईसॉप नहीं बेच पाया था बस। वो उसके बाद 2008 में, उसके बाद से वो वहीं के वहीं रह गए। तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। So in terms of sectors, any specific sectors which you see are the sunshine sectors, और जो आपने renewable energy की जैसे बात की, अभी defense stocks काफी focus में थे, so अब how are things changing in the next 6 months, 12 months? Some views on that? I think anything which has got to do with digitization. I think, for example, again, not a recommendation, but
अब जैसे ये जोमेटो 5 गुना हुआ है रीसेंट लोज से, या पेटीएम 4 या 5 गुना हुआ है रीसेंट लोज से। आई थिंक दिस इज स्टिल द गो टू स्पेस फॉर मी। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी पैसा बनेगा, क्योंकि इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इनके पास बहुत बड़ा एक मार्केट है, और टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 जिस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जो भी डिजिटल में लीड करेगा, द नेक्स्ट 20 years आर गोइंग टू बिलोंग टू देम। तो उन्हीं पर फोकस करें। रिन्यूएबल एनर्जी में इशू ये आएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कम लोग पैसा बनाएंगे वो, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा उसमें। तो उसमें आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोग उसके पीछे, वो सोलर एनर्जी और इसके पीछे जो भाग रहे हैं, उनमें बहुत कम लोग होंगे जो पैसा बनाएंगे इसमें इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन डिजिटाइजेशन जिसने सही से पकड़ लिया, आई थिंक दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। डिफेंस मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिफेंस में अब स्टार्टिंग पॉइंट इतना खराब है, आपके अगेंस्ट है, कि यहाँ से अब कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट करना थोड़ा टफ होगा। मेरे ख्याल से एक और इंडस्ट्री जहाँ बहुत बड़ा पैसा बनेगा वो है कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए प्लेयर्स। मेरा अभी भी मानना ये है कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं, एंड डिस्क्लोजर आई एम इन्वेस्टेड इन सम ऑफ देम, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी भी काफ़ी बड़ी वैल्यू जनरेट करेगा, क्योंकि हर कोई जो है ना वो इवेंचुअली, अभी भी हम काफ़ी अंडर इन्वेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। अभी भी आई थिंक हमारी सेविंग्स का कितना, आई थिंक मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट लेस देन 10% होगा जो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में आता है। ये नंबर जब धीरे धीरे बड़ा होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर भी आगे जाकर काफ़ी बड़ा बनने वाला है। So in terms of geopolitical scenario, अपने देख रहे हैं यूएस का भी we are facing the tariffs, अपने neighbors हैं there also we are facing challenges. So though the domestic market may be doing well or reasonably well, but the surrounding factors may not be that welcoming to us as an investor. So your thoughts on that, please. देखिए, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है ना वो हमारा आज से खराब नहीं रहा है, हमारा हमेशा से खराब रहा है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चूज योर नेबर्स अनलेस यू चेंज योर हाउस। और अब हाउस तो आप चेंज कर नहीं सकते, आप जिस देश में रह रहे हो वो देश है आपका। हमारे साथ तकलीफ क्या है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह से हम घिरे हुए हैं अनफ्रेंडली नेबर्स से। उनमें से कुछ पहले फ्रेंडली हुआ करते थे, आजकल वो भी अनफ्रेंडली हो गए हैं। तो उसमें आई पर्सनली फील कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, या होम मिनिस्टर हैं, या फिर जो हमारी पूरी की पूरी आईएएस लॉबी है, अगर वो अपना काम अच्छे से कर रही है तो हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं, मतलब हमसे तो बेटर ही करेंगे वो। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है हम वो कर सकते हैं। तो उस पर तो हम सिर्फ एक लीप ऑफ फेथ लेके चल सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है ना। आज की डेट में हम सब आराम से चैन से सोते हैं ना, डिस्पाइट जो कश्मीर में रह रहे हैं वो भी आराम से सोते ही है ना, या फिर जो पंजाब में बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं वो भी आराम से सोते ही है ना, विद द कॉन्फिडेंस कि जो बॉर्डर पे लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमको बस वो एक, ऑब्वियसली वी हैव टू बी थैंकफुल टू देम, वी हैव टू हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम। बट जियो पॉलिटिक्स में हम इससे ज़्यादा मतलब उसका हम कोई उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम उसको पोर्टफोलियो से कैसे उसको कोलैबोरेट करेंगे। So now I will open the floor for the questions from the audience and Nitesh ji. सर आप हमने देखा कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 से 8.2 आ गई लास्ट 10 दिन में। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट जो है इसका इम्पैक्ट लेगा, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट एसएमई एंड स्मॉल सेक्टर पे आया नहीं। सो हाउ यू व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एंड इवन कल आरबीआई भी जो है दे हैड आल्सो रिवाइज इट्स जीडीपी ग्रोथ रेट, फ्यूचर जैसे जीडीपी मुझे लग ग्रोथ रहा है रेट। आपका पोर्टफोलियो कुछ ज्यादा ही एसएमई में है लग रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि एसएमई को उससे मत जोड़ें आप। एसएमई में वैल्यूएशन इतने क्रेजी हो गए थे कि अभी एसएमई में अभी भी बहुत रिस्क है। मैं तो चाहता हूं कि लोग थोड़ा समझें इस चीज को। एसएमई इस देश की जरूरत है, लेकिन एसएमई पिछले 2-3 साल में कई एसएमईज तो बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग के वो बन गए थे, इंस्ट्रूमेंट बन गए थे। ऑब्वियसली दिक्कत क्या है कि यू कांट यू नो ब्रश एवरीवन विद सेम पेंट, लेकिन एसएमई में सेलेक्टिवली पैसा बनेगा। एसएमई में एज अ स्पेस जो बड़ा पैसा बना था पिछले 2-3 साल में, वो फेज था, वो फेज गया। अभी आप देखिए, मैं जैसे क्या होता है, एक टाइम था
तेंदुलकर की बात कर रहे थे हम, तेंदुलकर ने हर सीजन में हर उसमें रन बनाए. देयर विल बी फेजेस वेयर देयर विल बी वन बैट्समैन हु विल से कि वो ही इज बेटर देन तेंदुलकर. फिर 4-5 साल के बाद वो फेल हो जाएगा, फिर दो नया बैट्समैन आएगा, बोलेंगे कि दिस इज बेटर देन तेंदुलकर. फिर वो कुछ 3-4 साल उसका टाइम चलेगा, फिर नया बैट्समैन आएगा. जब 20 साल हो जाएंगे ना, 20 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि यार तेंदुलकर तेंदुलकर है, वो गॉड है वाकई में. बाकी सबका बीच बीच में टाइम आया था. एक यही था जो 20-25 साल तक उसी फॉर्म के साथ बैटिंग करता गया. तो मेरा ये मानना है कि ये आप जीडीपी के इसको एसएमई से मत जोड़ के देखें. निफ्टी तो आ गया ना ऑल टाइम हाई पे, मोर और लेस ऑल टाइम हाई पे है ही हम. तो उस तरीके से अगर आप देखें, और जीडीपी देखिए, जीडीपी हाई है लेकिन नॉमिनल जीडीपी अभी भी हमारा काफी वीक है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन 1% पर आ गया है. तो अगर आप देखें तो 8.2 में भी अगर आप 1% जोड़ दें तो नॉमिनल जीडीपी तो हमारा 9.2 मतलब लेस देन 10 ही है. हमारा बेस्ट के सिनेरियो तो होता था कि जब 7-8% की जीडीपी हो, 4-5% की इन्फ्लेशन हो, तो 12-13% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ होती थी. तो उस वजह से. लेकिन आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. सर हमने देखा कि ये फॉरेन एक्सचेंज दैट दैट अभी रुपी और डॉलर का जो है एफआई को दो नुकसान एक रुपी डेप्रिसिएशन का जो नुकसान हो रहा है नाउ, यदि करेंसी स्टेबलाइज कर देती है मे बी एट 90, 91 और 92 जहाँ पे भी हो, आफ्टर दैट व्हाट हाउ डू यू सी कि एफआई का रिएक्शन कैसे क्या होगा और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे फर्दर? देखिए, मेरा ये मानना है पर्सनली, एंड आई दिस इज पर्सनली एंटायरली माय पर्सनल व्यू, इट्स गॉट नो रिलेशन टू माय चैनल्स व्यू. मेरा ये मानना है कि ये वाला जो करेंसी डेप्रिसिएशन है, ये एक सोचा समझा मूव है. ये अलाउ किया गया है करेंसी को डेप्रिशिएट करना, दो कारणों से. पहला कारण, ट्रेड डील में देरी हो रही है, ऑब्वियसली ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से एक्सपोर्टर्स को काफी लॉस हो रहा है, तो थोड़ा उनका लॉस कुशन करने के लिए ये मेरे ख्याल से किया गया है. और काफी कुछ अब, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग काफी स्ट्रांग है, मेक इन इंडिया हो रहा है काफी कुछ, तो इसके लिए अब उसका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पे इतना इम्पैक्ट नहीं है. और क्रूड वैसे ही $61-62 पर है, तो कोई बहुत ज्यादा ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसके पास भी कुशन है. तो इसके लिए हम एक स्टेज में हैं जहां पर हम ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन रुपी का अलाउ कर सकते हैं. और दूसरा, आई थिंक हम नहीं चाहते कि एफ को हम इजी एग्जिट दें. अब अगर 91 92 पे उनको भी लगे कि यार अब इस लेवल पे तो मैं क्या ही बेचूं, तो इसके लिए थोड़ा सा उसका भी एक इम्पैक्ट आ सकता है. एफ इंडिया में पैसा इसलिए नहीं डाल रहा है क्योंकि दो कारण हैं. एक तो उनकी मदर मार्केट में उनको भयंकर रिटर्न मिल रहे हैं. पिछले कुछ सालों में एनवीडिया जैसी कंपनियां बनी हैं, और ओरेकल आपने देखा होगा, एक एक दिन में ओरेकल उतना मार्केट कैप ऐड कर रहा है जितना हमारा पूरा इंडियन आईटी का मार्केट कैप है. तो कोई करेंसी रिस्क नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट का रिस्क नहीं, तो कोई क्यों दूसरे देश में पैसा डालेगा. प्लस हमने यहाँ टैक्स लगा दिया. पहले एटलीस्ट उनको एक एडवांटेज मिलता था कि हमारी मार्केट में एफ पे टैक्स नहीं लगता था. तो इस वजह से वो कहीं और जा रहे हैं. चाइना की मार्केट हमारी मार्केट से अभी भी सस्ती है, इसलिए भी थोड़ा पैसा वहां जा रहा है. हमारी मार्केट में पैसा आएगा जब हम वापस मोमेंटम में आ जाएंगे, जब मार्केट में वापस उस तरीके की रैली होगी ना जो हमने देखी थी, तो एफ का पैसा भी वापस आएगा. और एफ का पैसा तो इंडिया में करेंसी डेप्रिसिएशन के बावजूद आया है. करेंसी तो हमारी पिछले हर साल से 5-5, 6-6% का एक नॉर्म है. 5-5, 6-6% हमारे साल डेप्रिशिएट होते हैं. ऐसा कुछ नया तो है नहीं जो इस साल हुआ है. बीच में एक आध साल आते हैं जिसमें हम नहीं डेप्रिशिएट होते हैं, वरना अदरवाइज 5-5, 6-6% जितनी हमारी इन्फ्लेशन है लॉन्ग टर्म की, उतना ही हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है. Thank you, sir. With these, we open for the questions. Anybody can raise hand, please. Yes, please. Share the mic, please. Yes, sir, you said that financial services companies will perform. So what is the future of NSE in terms of buying in the unlisted space at around 1800, 1900 currently? देखिए, पहले तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी सबसे बड़ी पर्सनल इन्वेस्टमेंट एनएससी में ही है. तो इसके लिए आई थिंक इट विल बी, माय व्यू विल बी बायस्ड, तो इसके लिए. लेकिन मेरा ये मानना है कि इस लेवल पर एनएससी थोड़ा सा रिस्क इस चीज का है कि आईपीओ कब आएगा उसका, क्योंकि काफी समय से हम सब आईपीओ की वेट कर रहे हैं और उसका आईपीओ नहीं आ रहा है. और बीच में एक दो एग्जांपल हुए हैं, जैसे टाटा कैपिटल का एग्जांपल हुआ था, एक एचडीबी फाइनेंशियल का भी एक एग्जांपल हुआ था, जिसमें अनलिस्टेड मार्केट कुछ बहुत ज्यादा एक्सुबरेंट हो गया था. हालांकि एनएससी अभी भी अगर आप देखें तो बीएससी के मुकाबले सस्ता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि एनएससी अभी भी बबल में है. लेकिन इस लेवल पर मैं तो पैसा नहीं डालूंगा पर्सनल. अगर आप मुझे कहेंगे, मैं तो कोविड के टाइम पे पैसा डाला था, उस समय तो खैर सब कुछ चीप था, तो इसके लिए चीप मिल गया था. लेकिन इस लेवल पर
पैसा अगर आप डाल रहे हैं तो क्या यहाँ से 15-20% की कंपाउंडिंग होगी या नहीं होगी? हो सकता है हो जाए, और मैं चाहूंगा, पर्सनली मैं चाहूंगा कि हो जाए, लेकिन इस लेवल पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्की है मामला, क्योंकि 5 लाख करोड़ का ऑलरेडी मार्केट कैप है आज की डेट में। अगर आप देखें एनएससी का, मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपके इन्वेस्टमेंट का वो होना चाहिए जहां से कोई स्टॉक 20 गुना हो जाए, है ना? तो 5 लाख करोड़ की अगर स्टार्टिंग मार्केट कैप पे आप पैसा डालेंगे तो वो 20 गुना होगा या नहीं होगा? आई थिंक दैट इज द कॉल दैट यू नीड टू टेक। Thank you, sir. Next question, please. हेलो नु सर, मैं सी रवि कुमार शाह। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप हमेशा रोज बोलते हैं बाय ऑन द डिप, बाय ऑन द डिप, तो वो डिप कब आएगा? एक शेयर है आरवीएनएल, 500 का शेयर था, 300 आ गया, तो उसको कब डिप करें, कब परचेज करें? देखिए, मैं बाय द डिप जब बोलता हूँ ना, तो वो मैं निफ्टी के लिए बोलता हूँ, मैं आरबीएनएल के लिए नहीं बोलता हूँ, ठीक है? क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स की डिप्स अलग अलग होती हैं, नहीं ठीक सर, है? उसकी अब गवर्नमेंट कंपनी है, इतनी अच्छी कंपनी है, उसके बाद भी डिप खत्म ही नहीं हो रहा किसी कंपनी का। सर, इरिडा याद है आपको? इरिडा का आईपीओ आया था, हाँ। आईपीओ आने के बाद वो 6 गुना हुआ था। आज की डेट में इरिडा का हाल देख लीजिए आप, क्या हो रहा है। आरबीएनएल की आपने बात की, आरबीएनएल का शेयर प्राइस जब दमानी जी ने लिया था, उसके बाद ये स्टॉक जो है ये 2021-22 में 33 रुपए का था। हाँ, 30-40 रुपए, 300-500 हुआ, और फिर वो वापस 300 पे खड़ा हो गया, जबकि हाँ, गवर्नमेंट तो 30 कंपनी है, इंडिविजुअल स्टॉक बहुत कम है इसमें, तब भी। 30 रुपए का 500 हुआ, 500 का 300 हो गया, तो भी जिसने 30 पे लिया तो उसका 10 बैगर ही है। डिविडेंड यील्ड भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसकी, हाँ। 0.5% की डिविडेंड यील्ड है। 57 का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है। मतलब ऐसा कोई मुझे 30 रुपए पे अंडर वैल्यूड था विदाउट अ डाउट, लेकिन 500 रुपए पे इतना ओवर वैल्यूड हो गया कि अब आज की डेट में 300 रुपए पे आ गया। मेरे ख्याल से रेलवे स्टॉक्स में एक टाइम था, ये सब क्या होता है, ये जैसा मैं कह रहा हूँ कि इनके फेजेस आते हैं। ये सलमान खान का एक फेज आया था जिसमें वो कोई भी मूवी करता था, वो सारी की सारी चलती थी। वो एक से लेकर एक जितनी थी ना, सारी की सारी, तो दबंग से लेके, बॉडीगार्ड से लेके, टाइगर से लेके, आप कोई भी मूवी देख लीजिए, किसी मूवी का कोई सर पैर नहीं था। वो सारी की सारी 200-300 करोड़ कमा के दे देती थी उसको उस समय पे। आज की डेट में उसकी एक भी फिल्म नहीं चल रही है उस तरीके की। वो फेज है। तो वो एक फेज आया था 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, जिसमें सारे के सारे स्टॉक्स 8 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो गए थे। लेकिन अब इनका मीन रिवर्जन चल रहा है। अब इनका मीन रिवर्जन कहाँ खत्म होगा सर, मुझे नहीं पता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस लेवल पे आरबीएनएल में अभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि 57 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग्स है, आधे % की डिविडेंड यील्ड है। आज की डेट में इतनी अच्छी अच्छी पीएसयू है जिनके 3-4% की डिविडेंड यील्ड है, तो मैं क्यों आरबीएनएल में इन्वेस्ट करूँ? थैंक यू सर। ओके। So hi sir, I have a small question that IT जो sector है, as a sector, not a specific stock. So considering ये AI के कारण जो changes आ रहे हैं, तो how do you see this to grow over a period of 3 to 5 years? देखिए, मेरा ये मानना है कि आईटी में अभी भी आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन मिड कैप आईटी में बहुत मौके हैं अभी भी। आप देखिए, परसिस्टेंट, कोफोज, ओएफएसएस, एम्फेसिस, इन सब ने बहुत अच्छा किया है। और ये जो एआई का इशू है, वो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप आईटी को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन पर्सनली मिड कैप आईटी में मैं काफ़ी बुलिश हूँ। मेरा ये मानना है कि मिड कैप आईटी में आप सेलेक्टिवली आप अगर ढूंढेंगे तो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मिल जाएंगे, और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ। हेलो सर, माय नेम इज़ चिराग केडिया एंड मेरा Hi, क्वेश्चन चिराग। था कि सर आपने जैसे बोला कि इंडिया का गवर्नमेंट अभी डिजिटाइजेशन, मेक इन इंडिया बहुत पुश कर रहा है विद द R&D बजट एक्सीडिंग डे बाय डे। तो in the longer run, 15-20 years, what are your expectations with in the space like a semiconductor or data centers? Because in semiconductors, Tata is also like setting up a plant in Assam. देखिए, मुझे ना डर लगता है जब आप लोगों ने आरआरपी सेमीकंडक्टर का प्राइस देखा है? सब नहीं देखा होगा, है ना? 11,320। बीएससी कह कह के थक गया, सब कह कह के थक गया। ये स्टॉक 60 रुपए पे था 1 साल पहले, 60 रुपए से आज 11,300 आ गया, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसका फिर भी। तो इशू क्या है कि एक होता है कि कंपनी पैसा बनाएगी या नहीं बनाएगी, एक होता है स्टॉक पैसा बनाएगा या नहीं बनाएगा, है ना? हमको चाहिए कि स्टॉक पैसा बनाए एट द एंड ऑफ द डे। तो इसके लिए अब लेकिन दिक्कत क्या है कि इस स्पेस में स्टॉक इतने कम है सेमीकंडक्टर में। तो लेकिन स्पेस तो बहुत अच्छी है। डेटा सेंटर पे तो मैं बहुत बुलिश हूँ। आई थिंक डेटा सेंटर काफ़ी पैसा बनाएगा डेटा सेंटर में, लेकिन अगेन
डेटा सेंटर के स्टॉक्स जो हैं, जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी महंगे हैं। और बाकी जो प्योर प्ले डेटा सेंटर स्टॉक्स हैं, एक आध डेली बेस्ड स्टॉक्स वगैरह हैं, उनकी बात नहीं करूंगा पर्सनली, लेकिन उस पर उनकी मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो इसके लिए उन पर मैं बहुत ज़्यादा बात कहूँगा नहीं। लेकिन सेक्टर दोनों अच्छे हैं, पैसा बहुत बनाएंगे दोनों, उसमें आपको बस अच्छे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे। दिक्कत ये है कि वही नहीं मिल रहे। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम हेलो। आदित्य बंसल है। मेरा क्वेश्चन है सर कि हम लोग का जैसे अभी पोर्टफोलियो में सब स्मॉल कैप मिड कैप फंसा हुआ है, तो अभी अब अपने 25% लॉस में चल गए हैं, तो उस लॉस को बुक करके फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि थोड़ा वेट करना चाहिए? 100% आपको बुक करना चाहिए लॉस। 100%। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो इस मार्केट में भी लॉस में है, तो इसका मतलब आपको उस मार्केट के मैसेज को समझने की ज़रूरत है। वरना होगा क्या, आपकी जो ये एक कहता ना कि ये टी सही और बढ़ेगी, आपको यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी 30,000 हो जाएगा अगले 1 साल में। ये मैं मतलब हो जाना चाहिए, ये मैं एक कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। लेकिन सोचिए यहाँ से मार्केट और 20% भाग जाए और उसके बाद भी अगर आपका पोर्टफोलियो 25% लॉस पे रहा, हो सकता है और 30% लॉस पे हो, तो आपको बुरा लगेगा। 100% अगर आपका पोर्टफोलियो अब तक 20-25% के लॉस पर है आपके प्राइस से, तो मार्केट आपको मैसेज दे रही है कि अपने पोर्टफोलियो को चेंज करिए। मार्केट आपको मैसेज दे रही है अपने पोर्टफोलियो को चेंज करिए। इस होप में मत रहिए, जैसे कहते हैं ना, होप इज नॉट अ डेटा पॉइंट। इस होप में मत रहिए कि आपका स्टॉक प्राइस जो है वापस आ जाएगा। हाँ, एक दो केस हो सकते हैं जिसमें आप थोड़ा बैठे रहें, पोर्टफोलियो स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है वो, लेकिन पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अगर आप वही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी सर, फिर आप पीछे रह जाएंगे। थैंक यू। Good afternoon, Mr. Sorry. Anuj ji. हाँ जी, Hello. हाँ जी, हाँ जी। Uh, जैसे multiple people guests you invite on your show, they come and say कि please allocate some of your funds in international markets. जैसे Mr. अजय शर्मा जो आते हैं, या Helios Capital के समीर जी आते हैं. So how do you think as an Indian investor we should move about, and what should our strategy be using the LRS or using some other method? एंड कहाँ पे आपको कौन सा इकोनॉमी अभी बूमिंग लग रहा है? जैसे इवन दी MSCI इंडिसेस आर डूइंग प्रिटी वेल, एंड डू यू थिंक इट्स अ मोर लुक्रेटिव आइडिया टू इन्वेस्ट इन सम ऑल्टरनेट इकोनॉमी एज वेल? सर एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक ना माँ अपने बेटे को एक साधु के पास लेके जाती है, कहती कि ये ना मेरा बेटा जो है ना, ये चीनी बहुत खाता है। तो साधु ने कहा कि बेटा अच्छा ठीक है, आप इसको 1 हफ्ते के बाद लेके आइएगा। तो माँ उसको 1 हफ्ते के बाद लेके आती है। तो साधु बोलता है कि बेटे को कि बेटा चीनी मत खाया करो, चीनी खराब होती है। तो माँ कहती है कि ये तो आप पिछले हफ्ते भी कह सकते थे, फिर आपने 1 हफ्ते बाद मुझे क्यों बुलाया? तो साधु ने कहा कि क्योंकि पिछले 1 हफ्ते तक मैं भी चीनी बहुत खाता था, तो पिछले 1 हफ्ते से मैंने खुद चीनी खानी बंद कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि जो मैं चीज़ मैं खुद नहीं करता, मैं कैसे एडवाइस करूँ? अब सर मैंने खुद कभी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट किया नहीं है, तो मैं एडवाइस कैसे दूँ? लेकिन एक चीज़ जो मैं बता सकता हूँ आपको कि इंटरनेशनल मार्केट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। LRS एक ऑप्शन है। आज की डेट में हमारे यहाँ ETFs एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, जैसे हैंगसेंग ETF है। मैंने एक बार कहा भी था आई थिंक पिछले साल की, हैंगसेंग ETF कैन बी अ गुड ऑप्शन। ऐसे ही एक जैसे पराग पारिक का फंड है, जिसमें 30% वो US लिस्टेड या नैस्डैक लिस्टेड स्टॉक में डालते हैं वो, हालांकि वो फंड का साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। अभी हमारे शो में अजय शर्मा जी आए थे, आपने नाम भी लिया, वो कह रहे थे कि जैसे काफ़ी मार्केट्स हैं, जैसे इंडोनेशियन मार्केट है, ये सब मार्केट है, इसमें काफ़ी पैसा बन रहा है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मेरा तो ये मानना है कि मैं तो वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे मैं खुद पर्सनली मॉनिटर कर सकता हूँ, और वो मेरे खुद के देश की मार्केट है। मुझे ये लगता है कि मतलब मोर और लेस इतने मौके तो मुझे मेरे देश में भी मिल जाएंगे जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, बाकी थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, बट ETF कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज एसेट्स। इंडिया में भी काफ़ी लिस्टेड ETF हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स। थैंक यू। Hi, sir. Hi, sir. So, sir, the general trend is that people move from FD to mutual funds, and then we say from mutual fund to direct stocks. So, sir, what do you think is the right strategy for picking stocks, matlab, as a retail investor? So, should he go fundamental? Should he go momentum based? What kind of strategy is better from a retail investor point of view? वैसे पिछले 3 साल में उल्टा हुआ है, लोग स्टार्ट करते थे स्टॉक से, उसके बाद फिर आ गए कि म्यूचुअल फंड में, वो इतना लॉस किया उन्होंने। वैसे जो आपने बात बोली वो सही है, पहले स्टार्ट म्यूचुअल फंड से ही करना चाहिए, फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आना चाहिए।
देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास खुद कैपेबिलिटी है, रिसर्च आप कर सकते हैं, तो किसी को फीस देने की क्या ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड एट द एंड ऑफ द डे जितना भी पैसा आप कमाएंगे उसका 20-30% तो आप मान के चलिए कि मार्कअप कॉस्ट हो ही जाती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। तो अगर आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि खुद इन्वेस्ट करने में पैसा नहीं बन रहा है तो फिर वो म्यूचुअल फंड की फीस को थोड़ा सा एक फीस समझ के दे दीजिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। एंड सर व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी जब वो इफ समवन मूव्स टू इंडिविजुअल स्टॉक्स देन क्या मोमेंटम बेस्ड होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए, प्योर मिड कैप, मतलब वो क्या होना चाहिए अप्रोच? देखिए वो डिपेंडिंग ऑन, अब जैसे आप पर्थ में खेलेंगे तो पहले 1 घंटे आपको डिफेंड करना है, अगर वही आप ईडन गार्डन में खेलेंगे तो आधी पहली बॉल से आपको छक्का मारना है। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट में है ना। अगर आप मोमेंटम मार्केट में हैं तो मोमेंटम को बैक करिए। अगर आप एक टफ मार्केट में हैं, जैसे पिछले 2 साल या पिछले 1 साल ज़्यादा फोकस पैसा बचाने पे था, मेरे ख्याल से अब अगले 1 साल आप प्योरली मोमेंटम प्ले करिए। मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल टू व्हीलर, PSUs, NBFCs इनमें अपने पोर्टफोलियो को भर दीजिए अपने पोर्टफोलियो को टू व्हीलर से, NBFC से, माइक्रो फाइनेंस से, ये सारे के सारे स्पेस जो पिछले कुछ समय में जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, इन सब से अपने पोर्टफोलियो को भर दीजिए। तो इस समय वो काम करेगा। एक टाइम आया था जिसमें ये सब जैसे डिफेंस, रेलवेज ये सब अच्छा कर रहे थे, PSU सब अच्छा कर रहे थे, तो उन पर फोकस कर सकते थे आप। तो इट डिपेंड्स ऑन एट व्हाट टाइम यू आर एंटरिंग द मार्केट, एट व्हाट टाइम यू आर पुटिंग योर मनी इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन जस्ट सर, जैसे मतलब एक डिवाइड है राइट, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास बहुत एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रहता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत कम रहता है, तो हाउ कैन रिटेल इन्वेस्टर्स ट्राई टू ब्रिज दैट गैप अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली बहुत जैसे अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। रिटेल इन्वेस्टर कैन नॉट ब्रिज दैट गैप। वो आप मान के चलिए कि जो एक, जिसे कहते हैं ना, तो बड़ी मछली जहाँ पे वहां ना जाए छोटी मछली, तो वो बड़ी मछली उसको स्वालो कर लेगी। तो छोटी मछली को चाहिए कि अपनी खुद की एक जगह ढूंढे। देखिए ये बात मान के चलिए कि जो इन्फॉर्मेशन, अब जैसे केन्स टेक्नोलॉजीज का मैं एग्जांपल देता हूँ। केन्स टेक्नोलॉजीज, आई एम श्योर कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रही होगी जिन्होंने पहले ही बेच दिया होगा इसको, और रिटेल के पास वो इन्फॉर्मेशन जब तक आई, जब तक वो कोटक सिक्योरिटीज ने नोट छापा, उसके बाद जब तक वो आया, ऐसा नहीं कि लेकिन उसके बाद स्टॉक नहीं गिरा, उसके बाद भी स्टॉक गिरा। लेकिन और एक और चीज मैं बताऊं आपको, कई बार होता है कि जो जिसके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल मन्नापुरम में बेन ने इन्वेस्टमेंट की, वो स्टॉक गैप अप हुआ, लोगों को लगा यार गैप अप हो गया, अब मैं क्या करूं। और गैप अप होने के बाद जिसके पास बहुत बड़ी पोजीशन है ना इनसाइडर, वो तुरंत बेच देता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी पोजीशन का रिस्क कैरी नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, उसमें असली बड़ी रैली उसके बाद आती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स को जब डियाजो ने खरीदा था उस दिन बड़ी रैली आई थी, लेकिन उसके बाद उसकी असली बड़ी रैली हुई थी उसके उसके कई टाइम बाद। ठीक है, तो ये कई बार आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ना होना एक्चुअली आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि इन दैट केस, हाँ, आपको बस एक ये चीज करनी है, आपको बस ये देखना है, वो स्क्रीन आपको बता देती है कि कहाँ पे वो इनसाइडर जो, या जिसके पास पहले इन्फॉर्मेशन थी, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुका है। वो स्क्रीन आपको, चार्ट आपको दिखा देता है, वहां पर आप फिर अपना व्यू ले सकते हैं। आपका एंट्री पॉइंट उसमें जरूर थोड़ा सा अलग होगा उनके मुकाबले, लेकिन वहां से भी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। पर्सनली मेरा तो ये मानना है। थैंक यू। Hello. Sir, what about your private sector bank? Some of the banks are having more book value than the market price. What is your views on this? Like कौन सा बैंक की Karnataka बात कर रहे Bank. हैं? Karnataka Bank like. सर कर्नाटका बैंक तो काफी चला है ना पिछले 3-4 दिन में। आई थिंक मेरे ख्याल से एकदम से कुछ वहां पर हुआ भी था। हाँ. लेकिन इशू क्या है ना, इशू क्या है, इशू ये होता है कि एक कहावत होती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वो कर्नाटका बैंक के साथ यही हुआ था। वो 160 वाला स्टॉक जब 40 रुपये आ गया था, या उससे भी नीचे आ गया था मेरे ख्याल से, आई थिंक, तो उस वजह से थोड़ा सा लोगों को लगता है कि यार इसमें अब आगे जाके पैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो इसके लिए वैसे, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, यू राइट, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, प्राइस अर्निंग्स भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। लेकिन इनमें रिस्क यही रहता है, आप इनका चार्ट उठा के देख लीजिए पिछले कई सालों का। इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत मैटर करती है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टॉक था, ये 2008 में 162 था, और 2024 में जाकर वो प्राइस वापस आया। तो करीब करीब 14 साल तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये थोड़े से, लेकिन वही अगर आपने
कोविड में ले लिया 40 रुपए वाला। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का। गोकुलदास एक्सपोर्ट जब आया था, जिसने आईपीओ में पैसा डाला वो आज तक टेक्निकली कुछ पैसा नहीं बना रहा है, लेकिन जिसने पैनिक में डाला था उसका 10 गुना हो गया। तो दीज आर स्टॉक्स वेयर यू हैव टू टाइम, उसमें आपको टाइमिंग करनी है। अब इस लेवल पर आप टाइम करेंगे और पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, मेरे लिए कहना थोड़ा टफ होगा सर, सॉरी। Sir, I am asking something like that, where the book value is higher than the market price, generally in private banks. देखिए मार्केट में इफ समथिंग इज टू ऑब्वियस, इन दैट केस इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, देन देयर समथिंग रॉन्ग। बहुत सिंपल है, अगर ये बात आप देख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ, तो पूरी मार्केट देख सकती है। तो अब तक स्टॉक को डबल होना चाहिए था इसका। तो कुछ ना कुछ और इशू होगा जिस वजह से स्टॉक नहीं चल रहा। How to get that issue, sir? आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। आपको पता चल जाए तो बता दीजिएगा। Okay. Thank you. ओके, थैंक यू। हेलो सर, ऋषभ हेयर। सो बेसिकली जब ये टैरिफ का इशू स्टार्ट हुआ तो हम लोग जैसे देख रहे थे, वी वर गोइंग आफ्टर वेरी अदर कंट्रीज और इकोनॉमीज, लाइक अभी पुतिन साहब भी आए हुए हैं, यूके में भी अपने लोगों ने ट्राई किया था। तो मेरे को ये, चाइना भी अपने गए थे, तो मेरे को ये पूछना है कि लाइक आपको क्या लगता है कि इट वाज जस्ट अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, या वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन यूएस, और कि बाकी वर्ल्ड को अपने पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो? मतलब अपने क्या ट्राई कर रहे थे और आगे क्या होगा इस पे? देखिए ये चीज़ तो मतलब मेरी तो पर्सनल हॉटलाइन तो है नहीं प्राइम मिनिस्टर जी के साथ जो मुझे पता चले, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मेरा ये मानना है कि हम थोड़ा सा अपने आप को एटलीस्ट एक मैसेज तो दे रहे हैं वर्ल्ड को कि हम सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आप देखिए, अगर पिछले 6 महीने में आरबीआई ने 2 डील अप्रूव की हैं जो मुझे नहीं लगता कि पहले उन्होंने अप्रूव की होती। जैसे वो एमिरेट्स एनबीडी का स्टेक बाय आरबीएल बैंक में, या उससे पहले भी एक वो येस बैंक में जो सुमितोमो का अप्रूवल आया था। तो कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि वी आर ट्राइंग टू शो कि हमारे पास और भी कंट्रीज हैं जहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और ये ये होना भी चाहिए। हमें किसी एक देश के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, खासतौर से वहाँ जहाँ पर इतना एक तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा तो है नहीं, वो कब उठ के क्या बोल देते हैं कि इसको क्या नहीं समझ में आता। तो अगले 3 साल ये टफ इशू तो रहेगा हमारे लिए, तो इसके लिए थोड़ी सी हमको जरूरत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सबके साथ थोड़ा सा बना के रखें, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, यूएस के साथ भी, और आई एम श्योर वही हमारी गवर्नमेंट कर रही है उसमें। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, अगर मैं आज ग्लोबल एक्सपोजर को देखूं, तो आज अगर मैं S&P 500 में, जैसा आपने कहा कि FII अभी इंडियन मार्केट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की मार्केट उनको काफ़ी अच्छी रिटर्न्स बना के दे रही है, लेकिन सर मैं अगर S&P 500 को देखूं तो मैग्निफिसेंट 7 ही कंपनीज ऐसी है विच आर लाइक जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स। तो क्या एज ए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मैं आज अगर ग्लोबल एक्सपोजर को देखता हूँ, तो क्या इज दिस अ राइट टाइम टू अलोकेट 15 और 20% ऑफ माई AUM इन US और इन S&P 500 म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियोज? देखिए, ये सिर्फ अगर आप देखें तो वर्ल्ड का फिनोमेना नहीं है, ये हर मार्केट का फिनोमेना है। आज की डेट में आप हमारा भी देख लीजिए, अगर हमारी मार्केट भी कितनी नैरो हो गई है, हमारे यहाँ भी तो ब्रेड काफ़ी खराबी है। हमारी मार्केट में भी अगर आप देखें कुछ ही स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं। तो इशू क्या हो गया है कि द वर्ल्ड राइट नाउ इज कंप्लीटली पोलराइज्ड बिटवीन कंपनीज विच आर परफॉर्मिंग एंड कंपनीज विच आर नॉट परफॉर्मिंग। तो पैसा जो है इस समय वैल्यूएशन की केयर किए बिना उन कंपनियों में जा रहा है जो आउट परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा, AI एक्सपोजर भी ज़्यादा है इनका, सारी मैग्निफिसेंट कंपनीज का। बिल्कुल, आज की डेट में एनवीडिया अगर इतना मार्केट कैप हो गया है, इतना वो अट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट, तो एनवीडिया उस तरीके के नंबर भी दे रही है उसके बाद। ऐसा नहीं है कि इनके नंबर्स नहीं आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं ये इनके। लेकिन बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस समय रिस्क तो है ग्लोबल मार्केट। मैं बिल्कुल कहूँगा कि इस समय ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि AI बबल है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 2026 में नैस्डैक कैन फॉल 30%। आई मीन आई डोंट नो, आई मीन इफ दैट हैपेंस देन ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर तो पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की। तो इसके लिए लेकिन वो रिस्क तो सर आपको लेना पड़ेगा। देखिए, वो तो आप कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट में डालेंगे तो वो रिस्क तो आपको लेना होगा कि कहीं मैं गलत या ओवर वैल्यूड स्टॉक में तो नहीं जा रहा। थैंक यू सर। थैंक यू।
सर लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू सर, ये अपने स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, बट देर इज एक और कैटेगरी है जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और पावर ग्रिड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो काफ़ी अच्छा कर रही है, उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड. खास करके फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट, दे डिक्लेयर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर दैट दिस इज द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू गिव. उसके बाद में उनका प्राइस की भी अप्रिसिएशन होती है, तो विथ लो रिस्क वी आर गेटिंग वेरी गुड रिटर्न्स ऑन दोज. सो आर दोज बेटर बेट्स फॉर persons who are looking for safer bets, and what are the other things which can provide safer bets in these turbulent markets? प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों को आसान चीजें समझ में नहीं आती हैं. मतलब सबको 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 थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं वो अब लाइफ में डेयरिंग चाहिए. तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि रीट्स इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बेट. बट मेरे ख्याल से हम लोगों ने रीट्स को ना, एंड आई वुड से कि एज अ न्यूज चैनल इवन वी आर इक्वली गिल्टी फॉर दैट. आई डोंट थिंक हमने रीट्स पर उतनी बात की है जितनी बात हमें करनी चाहिए थी. उनके बेनिफिट समझाने के मामले को लेकर आई थिंक एक स्पेशल सेगमेंट होना चाहिए. हम लोग म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशल सेगमेंट देते हैं, कमोडिटी के लिए स्पेशल सेगमेंट देते हैं, तो वो भी रोज का. तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए या रीट्स वगैरह के लिए हफ्ते में एक सेगमेंट तो मेरे ख्याल से होना चाहिए. आपने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है. मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि सीएनबीसी आवाज पर कम से कम हम एक थोड़ा सा इसके बारे में अब ज़्यादा बात करें. थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन. वैसे मैं आज की जो मेरी पूरी कॉन्वर्सेशन है, इसका जो सबसे बड़ा वो जो निकला वो इस आपके क्वेश्चन से निकला है. वैसे थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. क्योंकि मैंने खुद इसमें देखा कि 150 के आसपास 150 की प्राइस थी, 16 रुपीज इज दी डिविडेंड विच दे हैव डिक्लेयर्ड, और उसके बाद में 10% की और अप्रिसिएशन, 20% रिटर्न विदाउट मच रिस्क. इफ वी आर गेटिंग, व्हाई बॉदर अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स? एब्सोल्युटली, आई थिंक बिल्कुल सही बात की आपने. लेकिन आजकल हो क्या गया, आजकल ना लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आदत लग गई है. तो उनको लगता है कि नहीं हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अब दिस इज अगेन नॉट अ कमेंट्री. आप पिछले 5 साल का भारती एयरटेल का और वोडाफोन आइडिया का चार्ट उठा के देख लीजिए. और पिछले 5 साल से लगातार मैं एक जैसे बात कह रहा हूँ कि भारती इज बेटर देन आइडिया एनी डे. आज की डेट में आप भारती में कितने इन्वेस्टर हैं वो देख लीजिए, और वोडाफोन आइडिया में कितने इन्वेस्टर हैं वो देख लीजिए. आपको दिख रहा है, आपको पता है कि ये कंपनी बेहतर है, आपको पता है कि ये कंपनी सेफ है, आपको पता है कि ये कंपनी आपका कंपाउंडिंग करेगी 15% पे. लेकिन दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि यार ये तो दूसरी कंपनी है ना, ये शायद 10 गुना कर देगी मेरा पैसा. हालांकि उसने आधा कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारा साइकोलॉजी है ना, वो हमारी साइकोलॉजी हमें प्रिवेंट करती है एक सेफ साउंड, एक रिलायबल ऑप्शन के लिए. हमको हमेशा ना मौका ढूंढना होता है कि कहाँ पर एक्साइटमेंट होगी, है ना. मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. जब प्रीवियस सेबी चीफ थी, तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा कि अनुज तुमसे बात करनी है. मैं कहा जी मैडम आता हूँ मैं मिलने के लिए. मैं गया, उन्होंने ना कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपने चैनल पे ये दिखाएं कि 90% एफ ट्रेडर्स लूज मनी. मैं कहा कितनी बार दिखाना है? उन्होंने बोला कि 3 बार दिखा दीजिए. मैं कहा मैं 10 बार दिखाता हूँ दिन में. मैंने 10 बार दिखाना शुरू कर दिया. उसके 1 साल बाद रिजल्ट क्या हुआ? वो 90% वाला 95% बन गया, है ना, या 93% बन गया. तो वो मतलब वो क्या है कि सबको रिस्क लेना आज की डेट में, ये दिक्कत है. बट ये बहुत अच्छी चीज कही है आपने. मैं थोड़ा पर्सनली इस पे काम करूंगा, थोड़ा सा इस पे पढ़ूंगा मैं रीट्स के ऊपर, ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर. Thanks a lot, sir. And before we conclude this particular session, any final thoughts, final words of advice for all our members who are attending this event today, and your final concluding thoughts on these, sir? Final concluding thoughts. First of all, thank you so much all of you for inviting me, and I once again sincerely apologize. I was really looking forward to being there physically, and खास तौर से नितेश जी ने जो इतनी पेन ली इतने समय से, वो he was following up with me. My personal apologies. I assure you next time you have an event, I promise you I'll be there physically. So that's my first commitment to you. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Next time I'll be there. Next time I'll be there. And my advice to everyone else is कि just trust in your country. Just trust in the ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर कंट्री ऑफ लास्ट 20 years. जो पिछले 20 साल में हुआ है, मार्केट उससे कहीं ज्यादा आपको अगले 20 साल में देने वाला है. तो ठीक है, बीच बीच में फेजेस आएंगे, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. 26,100, 25,800 बहुत ज्यादा बात करते हैं. 25,400 का सपोर्ट है, 26,200 का रेजिस्टेंस है. आप निफ्टी का 20 साल का चार्ट देख लीजिए, मुझे बता दीजिए कहाँ सपोर्ट था, कहाँ रेजिस्टेंस था. कोई रेजिस्टेंस नहीं था इस मार्केट में. सपोर्ट तो हर लेवल के बाद ऊपर 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 आता ही गया. तो इसके लिए इस देश में भी ऐसा ही है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है हमारा.
वो सब हमारे माइंड में है रेजिस्टेंस। जैसे आप ये सोचिए कि अगर 1.5 लाख निफ्टी होगा तो उस समय मैं मार्केट में कितना इन्वेस्टेड होगा। मेरे ख्याल से अभी तो मार्केट में असली पैसा बनना बाकी है। स्टे इन्वेस्टेड एंड जस्ट कीप द ट्रस्ट। बस गलतियां मत करिए, मतलब एकदम ऐसी गलतियां मत करिए कि पैसा आपका डूब जाए। ऐसी कंपनी में पैसा मत डालिए, अदरवाइज यू विल बी फाइन। Thanks for these golden words, and may I now request CA Rahul Modi to give a formal vote of thanks. So thanks Neeraj Bhaiya. It's my proud privilege to offer vote of thanks to our esteemed speaker Anu Singhal sir. Thanks a lot sir for this great insightful session. Sir, despite your health issues and extreme busy schedule, sir, you have managed to take out time for the deliberation, for which we are extremely thankful, sir. Sir, as you mentioned that we are hopeful that, and we are very sure also that companies like Google and Facebook will be coming from India. We are very confident, sir. Thanks a lot Nitesh Bhaiya for moderating the session so well that we could be able to gain maximum benefit out of Anu sir's time. Thanks a lot Neeraj Bhaiya for our VIPCA president for his active participation and efforts and to make the session so insightful. Thanks a lot to all of you for your participation. Thanks a lot. We all request all of you to take the lunch and reassemble for the next insightful session. Thank you so much. Sir, before we depart, thanks a lot once again from the association for taking time out and sharing your thoughts with us. And your memento, we could not deliver it to you physically, but we'll ensure that it reaches you soon. Don't worry, I'll come to Calcutta to collect it. Thank you so much. So nice of you, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you.